اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ شاہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف رسالہ روحی شریف کے اندر اور ہمارے مرشد پاک اپنی تصنیف دین الہی کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کو خیال آیا، میں دیکھوں تو صحیح میں کیسا ہوں، میری صورت کیسی ہے۔ خیال آنا ہی تھا، سامنے ایک عکس پڑا، وہ عکس ایک روح بن گئی۔ وہ روح اتنی خوبصورت تھی کہ اللہ خود اس پہ عاشق ہو گیا اور وہ روح اللہ پہ عاشق ہو گئی۔ وہ روح مصطفیٰ تھی۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نور سے ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر روح مصطفیٰ کو مقام عالم احدیت میں اپنے روبرو رکھا۔ اس مقام کو مقام محمود بھی کہتے ہیں اور قاب قوسین بھی کہتے ہیں۔ 70,000 سال یوں ہی گزر گئے، اللہ روح مصطفیٰ کو دیکھتا رہا اور روح مصطفیٰ اللہ کو دیکھتی رہی۔ پھر آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، روحیں نیچے آنا شروع ہو گئیں۔ جب روح مصطفیٰ کو اس دنیا میں بھیجنا تھا تو حضور پاک کے جسم مبارک کو تخلیق کیا گیا، پھر وہ روح اس کے اندر ڈالی گئی۔ تو روح مصطفیٰ پہ اللہ تعالیٰ ہر وقت تجلی ڈالتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو نظر رحمت ہے اس کو تجلی کہتے ہیں۔ ہر وقت تجلیات کا نزول اس پر ہوتا رہا۔ جب وہ روح مصطفیٰ جسم کے اندر آ گئی تو تجلیاں آپ کے جسم پر پڑنی شروع ہو گئیں، جس سے آپ کا جسم نورن اعلیٰ نور ہو گیا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 63 برس اس زمین پر قائم رہی ہے مسلسل، کیونکہ لیلۃ القدر کا تعلق روح مصطفیٰ سے ہے۔ روح مصطفیٰ جہاں جہاں رہی وہاں وہاں لیلۃ القدر ہوتی رہی۔ 63 برس حضور پاک نے ظاہری طور پہ اس زمین پر گزارے، تو 63 برس لیلۃ القدر اس زمین پر قائم رہی۔ جب حضور پاک کا وصال مبارک ہوا، آپ کی روح مبارک کو عالم وحدت میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں 7 سلطان الفقراء کی ارواح بھی ہیں اور حضور پاک کی روح مبارک بھی ہے۔ اب جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا ہے، اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی ایک رات کو وہ روح مصطفیٰ عالم وحدت سے ملائکہ، اولیاء اللہ کی ارواح اور انبیاء کرام کی ارواح کے جھرمٹ میں اس دنیا میں تشریف لاتی ہے۔ جس رات اور جس جگہ پر روح مصطفیٰ تشریف لاتی ہے، اس جگہ پہ وہ رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، کیونکہ جب وہ روح مصطفیٰ تشریف لاتی ہے تو اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ ایک تجلی 7 کبیرہ گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ اس وقت اس جگہ پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ سرے کے گناہ گار ہوں، وہ تجلیاں ان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، ان کو پاک کر دیتی ہیں۔ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں ملائکہ اترتے ہیں اور ایک روح اترتی ہے۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں اس روح سے مراد روح الامین یعنی جبریل امین ہے۔ میرا ان سے سوال ہے، کیا جبریل امین اولیاء اللہ سے زیادہ افضل ہے؟ جبریل امین تو تمام انبیاء کرام کے پاس وحی الہی لے کر آتے رہے ہیں
क्या वो सारी रातें लैलतुल कदर बन गईं? इस ज़मीन पर हमा वक्त औलिया अल्लाह मौजूद रहते हैं। अगर जिब्रील अमीन के आने से लैलतुल कदर हो सकती है तो औलिया अल्लाह की मौजूदगी में तो हर रात फिर लैलतुल कदर होनी चाहिए। उस रूह से मुराद जिब्रील अमीन नहीं है बल्कि रूह मुस्तफ़ा है। और उसी सूरत के अंदर एक आयत है कि लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल कदर 1000 महीनों से भी बेहतर है, अफजल है। कैसे कि अगर आप 1000 महीने भी इबादत करते रहें, जिक्र व फिक्र करते रहें, आप पर इतनी तजल्लियाँ नहीं पड़ेंगी, आपको इतनी पाकीज़गी नहीं मिलेगी जो उस एक रात में आपको मिल जाती है। जितनी तजल्लियों की बारिश होती है और जितनी गुनाहगारों की बख्शिश होती है, जितनी गुनाहगारों को पाकीज़गी मिलती है एक रात में, कि आप 1000 साल भी अगर इबादत करते रहें उतनी पाकीज़गी आपको नसीब नहीं हो सकती। तो लैलतुल कदर का ताल्लुक रूह मुस्तफ़ा के साथ है। वो जब और जहाँ तशरीफ़ लाती है उस जगह पे वो रात लैलतुल कदर होती है। एक और अहम बात, हमारे अहले इल्म इन्होंने 27वीं शब माह रमज़ान की इसको लैलतुल कदर के लिए मखसूस कर दिया है, जो कि हुजूर पाक की उस हदीस पाक की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। हुजूर पाक ने फरमाया लैलतुल कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो लैलतुल कदर तो हुजूर पाक ने भी उनको मखसूस नहीं किया, सहाबा कराम ने भी इसको मखसूस नहीं किया, औलिया अल्लाह ने भी इसको मखसूस नहीं किया, बल्कि हुक्म यही है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में इसको तलाश करो। तो ये अहले इल्म 27वीं शब को लैलतुल कदर के लिए जो मखसूस करते हैं ये मुनासिब नहीं है, ये उस हदीस की खिलाफ वर्जी है। तो लैलतुल कदर वही होती है जब रूह मुस्तफ़ा मलाइका के झुरमट में इस दुनिया में तशरीफ़ लाती है, उस पर अनवार व तजल्लियात की बारिश होती है, और जो अहले नज़र होते हैं, रोशन ज़मीर होते हैं, वो उन तजल्लियात का नज़ारा करते हैं, उन होने वाले वाक़यात का मुशाहदा करते हैं और बाद में उसकी वो तस्दीक भी फरमाते हैं। और वो अहले नज़र कैसे बनते हैं? नूर से। जब अंदर नूर आता है तो वो अहले नज़र बन जाते हैं, रोशन ज़मीर बन जाते हैं। फिर वो उन चीज़ों को देख सकते हैं जिनको ये ज़ाहरी आंखें नहीं देख सकती। उन्हीं के लिए किसी ने कहा कि आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नज़र वो क्या देखे। तो अंदर नूर पैदा करने का तरीका आपको बताते हैं, ये प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इसके लिए सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम को अपने दिल में उतारना पड़ता है। अल्लाह का नाम दिल के अंदर 2 तरीक़ों से आता है, या तो किसी मर्द कामिल की निगाह कीमिया से, जिस तरह हज़रत बहाउल हक को नक्शबंद क्यों कहते हैं? वो अपनी निगाह से अल्लाह का नाम लोगों के दिलों पे नक्श कर देते थे। जिसके दिल पे नाम नक्श हो जाता था उसको नक्शबंदी कहते थे। दूसरा तरीका इसका यह है कि रोज़ाना सफ़ेद कागज़ पर काले मार्कर से 66 मरतबा अल्लाह लिखें। फजर के बाद इसका बेहतरीन वक्त है। वैसे जब भी आपको मौका मिले बावजू होकर मोहब्बत और प्यार से लिखें, 66 बार लिखें। जिस तरह 786 को बिस्मिल्लाह शरीफ से निस्बत है, इसी तरह 66 को इसमें अल्लाह से निस्बत है। आप थोड़े दिन लिखेंगे, वो कागज़ पे लिखा हुआ अल्लाह का नाम तुम्हारी आंखों में तैरने लग जाएगा। जब तैरने लग जाए तो लिखना बंद कर दें, आंखें बंद करें और तसव्वुर से उसे दिल पे उतारें। एक दिन आएगा जो कागज़ पे लिखते थे तुम्हें दिल पे लिखा हुआ नज़र आएगा।
शुरू में वो ब्लैक कलर में होगा, फिर धड़कनें तेज हो जाएंगी। इन धड़कनों के साथ एक के साथ अल्लाह, दूसरी के साथ हु मिलाएं। अल्लाह हु का तकरार करते रहें, इससे नूर पैदा होगा। उस नूर से वो अल्लाह का नाम चमकने लग जाएगा। फिर कुछ अरसे बाद वो वाइट कलर में आ जाएगा। फिर अल्लाह हु करते रहें, उसका नूर बनता रहेगा, फिर वो नाम चमकता रहेगा और वो गोल्डन कलर में आ जाएगा। जिस तरह सूरज चमकता है, इस तरह वो अल्लाह का नाम तुम्हारे अंदर चमकेगा। उस वक्त कुरान कहता है, उलाइका कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों पे हमने ईमान नक्श कर दिया है। ये अल्लाह का नाम ईमान है। इस तरह से भी अल्लाह का नाम इंसान के अंदर आता है। अल्लाह का नाम सबसे अफजल भी है, सबसे पाक भी है और दिल में उतरने वाला तेज तरीन भी है। इसकी प्रैक्टिस करें। दूसरा तरीका, आप चलते फिरते उठते बैठते दिल की धड़कन महसूस करें। एक धड़कन के साथ अल्लाह, दूसरी के साथ हु मिलाएं। हाथ से कामकाज करें, दिल से अल्लाह अल्लाह करें। इसको कहते हैं दस्तकार में दिल यार में। ये इसका तरीका है, प्रैक्टिस करें। बाकी ये हमारे मुर्शिद पाक का फैज़ है, फैज़ आम है सब के लिए। इसमें आप जहाँ हैं, जो हैं, जैसे हैं, इससे हमें सरोकार नहीं। आप जहाँ भी हैं ये तरीका अपनाएं, फैज़ हासिल करें। अल्लाह के नाम का अपने दिल पे तसव्वुर करें, उसी तसव्वुर में आंखें बंद करें और आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर अल्लाहू का जिक्र करें। पढ़ो जी, अल्लाहू 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 अल्लाहू। पढ़ो जी, अल्लाहू 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 अल्लाहू।